Good evening, class. In last video, we have discussed so many things about the genetic disorders and chromosomal disorders in principal and inheritance chapters. Okay, so in last class, we have discussed the how the genes are generally gets to alternation and mutation period and which types of effects are generally seen in the males, in the females also, and most of the animals also it's get affected. So coming to the next point, we have to discuss so many points of that the chromosomal systems. Why? Because in last video we have discussed the genetic disorders. In next phase we have to discuss the chromosomal disorders, how the different types of disease are generally occurred by the disbalance or dismanner or alternation of chromosomal. Okay, in last video we have discussed the so many very harmful diseases. We have discussed thalassemia, phenylketonuria, we have discussed albinism. Okay, and we have also discussed alkaptonuria. So many diseases we have studied in last class, and these all are the diseases are mostly important for board exams. One of the diseases may be asked like what is the meaning of sickle cell anemia. So it is my request to you to all, please pay a more attention to understand all the things. Okay, so let's start. The first topic of today class is Edward syndrome. Okay, so firstly we have to understand the meaning of Edward syndrome. What is the meaning of Edward syndrome? Generally we know that the chromosomes are generally these types are arranged in our cells, and in this the Edward syndrome is a very dangerous syndrome. Generally it is occurred as chromosomes number 18. Generally Edward syndrome जो है वो chromosomes number 18 पे होते हैं, and generally हमारा जो chromosomes है it becomes 47 instead of 46. Okay, generally we know that in our body there is a pair of chromosomes 23 are available, but due to the abnormalities of one extra chromosomes our chromosomes become 47. यहाँ पे एक extra chromosomes add होने की वजह से it becomes as a trisomy and generally it looks like a 47. हमारा जो chromosomes है वो 47 हो जाता है, and that's why the human beings are generally get affected by the dismanner of chromosomes number 18. Okay, so what type of common symptoms are generally occurred? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो common symptoms क्या निकल कर आते हैं कि उनके इफेक्ट, जैसे chromosomes number 18 पे हमारा इफेक्ट देखने को मिला, सो इनके आउटकम्स क्या निकल कर आएंगे? सो द आउटकम्स विल बी जनरली कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वेदर मेल या वेदर फीमेल ऑल्सो, सो दैट टाइम हेड इज लिटरली फ्लैटेंड. उनका जो हेड होता है, हेड पोर्शन, सर वाला पोर्शन वो फ्लैटेंड होंगे. एंड सेकंड पॉइंट, हैंड्स आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे हैंड्स होंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन आई ऑलरेडी स्टडी ऑलरेडी टोट यू इन लास्ट क्लास. मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है जो मेंटल कैपेबिलिटी है उनका ग्रोथ होना बंद हो जाता है. ओके, सो यूजुअली ह्यूमन बींग्स आर जनरली डाई बिफोर द 1 years ऑफ एज. जनरली इसमें एक साल के अंदर ही जो ह्यूमन बींग्स है वो डाई हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन हो नहीं पाता है और उनकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकती है और वो इमेच्योरिटी में ही वो एक्सपायर हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट आफ्टर द एडवर्ड सिंड्रोम वी हैव टू डिस्कस द टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? सो टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट in our body there is a total number of chromosomes is 46. पूरा का पूरा जो सिस्टम है क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड है. जितनी भी डिजीजेस हमको डिस्कस करना आज, ये पूरी की पूरी डिजीज क्रोमोसोम्स बेस्ड है. ठीक है, सो टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ओके, प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ वाई. वाई नहीं होता है, एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. जैसे हमारा 46 क्रोमोसोम्स है जिसमें से 44 हमारे ऑटोसोम्स है और एक हमारा एक्स और एक हमारा वाई, या फिर एक हमारा एक्स या फिर एक हमारा एक्स होता है. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल कैटेगरी में जनरली यहाँ पे एक्स होना चाहिए था. सो इन दिस एक्स इज नॉट अवेलेबल. सो एक्स अगर यहाँ पे नहीं होता है सो द क्रोमोसोम्स नंबर बिकम्स 45. क्रोमोसोम्स नंबर हो जाते हैं 45. ओके, now if the chromosomes number
become 45, this disease is called टर्नर सिंड्रोम. इस डिजीज को हम लोग टर्नर सिंड्रोम्स करते हैं. ठीक है. सो टर्नर सिंड्रोम्स इज अ जनरली occurred when the presence of X chromosomes and absence of Y chromosomes that appears as a Turner syndrome. उसको हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. जनरली द कॉमन सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स आर फीमेल अपीयरेंसेस, फीमेल के जैसा अपीयरेंसेस होगा, विद शॉर्ट बॉडी डिजाइन छोटी होगी उनकी, एंड मोस्टली मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, उनमें फॉर्मेशन ऑफ oocytes वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे. सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होगा. एंड सेकेंडरी, हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जनरली हियर इट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी, इट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी. ठीक है. सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डू नॉट डेवलप, उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं. ठीक है. सो दैट इज द टर्नर सिंड्रोम, इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, Nail-Filter syndrome. K is the silent here. Nail-Filter syndrome is also a very important disease when the chromosomes number become extra. ठीक है. जब chromosomes number एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इट मीन्स दैट इन प्लेस ऑफ 46 इट अपीयर्स एज 47, दैट इज कॉल्ड नाइल फिल्टर सिंड्रोम. इसको हम नाइल फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं. जनरली क्रोमोसोम्स नंबर 47 यानी XY मेल का रहता है, एक X फीमेल का आकर ऐड हो जाता है तो मेल और फीमेल मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि XY आपका मेल का था लेकिन X क्रोमोसोम्स और प्रेजेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइल फिल्टर सिंड्रोम. एंड जनरली बहुत सारे इनके भी इफेक्ट हैं. इंडिविजुअल्स हैव स्मॉल टेस्टिस, इसमें जो ह्यूमन बींग्स यानी जो मेल कैटेगरी होगा उनके जो स्मॉल टेस्टिस जो होंगे बहुत स्मॉल छोटे साइज में होंगे, एंड टॉलनेस होगी, लंबाई होगी, बट ओबेसिटी होंगे, काफी मोटे होंगे, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट डेवलप्ड. और अगर हम बात करते हैं सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आल्सो नॉट डेवलप्ड एज कंपैरिजन टू टर्नर सिंड्रोम आल्सो, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे फीमेल अपीयरेंसेस के, वो भी अपीयर नहीं हो रहे थे. सो इन दिस केस आल्सो नाइल फिल्टर सिंड्रोम में भी इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डू नॉट डेवलप, ओके, टिल द लाइफ आल्सो, एंड दैट इज द नाइल फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. These two are the very important topics, so you all have to pay more attention to understand all the topics. Okay, now next we are going to discuss one more property of Nail filter syndrome. Nail filter syndrome का मतलब होता है complete infertile. Complete infertile का मतलब होता है those person which cannot produce their own ones. ठीक है. वो अपने own ones को यानी own young ones को पैदा ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट इनफर्टाइल हो जाते हैं. इनफर्टाइल मतलब होता है जनरली दोस टाइप्स ऑफ पीपल वेदर इट इज मेल एंड फीमेल, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस. ठीक है. अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में वो असक्षम होते हैं, जिसे हम इनफर्टाइल कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टू टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, XY chromosomes. Okay, XYY, it means here Y is a double, and if because this character shows the male, ये मेल का कैरेक्टर है लेकिन एक वाई यहाँ पर और ऐड एक्स्ट्रा, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल सिंड्रोम. इसको हम क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि मेल का एक वाई और प्रेजेंस होता है. सो इन प्लेस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 46 इट बिकम्स आल्सो क्रोमोसोम्स 47. यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं क्योंकि जनरली 44 ऑटोसोम्स के होते हैं. टू कैरेक्टर्स जो टू क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन डिफाइनिंग कैपेसिटी के होते हैं, लेकिन एक्स वाई मेल में होने के साथ साथ एक वाई एक्स्ट्रा और हो जाता है ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, इट कॉजेस एज क्रिमिनल सिंड्रोम. तो ये जनरली होते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम्स. ठीक है. यानी जो व्यवहार होता है, जो एप्रियंसेस होता है वो पूरे मेल का जैसा होगा, लेकिन उनके जो बॉडी का एग्रेशन है वो काफी क्रिमिनल टाइप के होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो कॉमन सिम्टम्स है, इनके बॉडी के अंदर इनकी जो IQ लेवल होती है वो बहुत लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. दे डोंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मेंटल कैपेसिटी. स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू, इनकी जो बॉडी बैलेंस होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी मजबूत होते हैं. बट हाई एग्रेशन मतलब थोड़ी सी चीजों में जनरली दे बिकम हाइपर. सो दैट इज ऑल अबाउट दी XYY chromosomes. दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल सिंड्रोम ऑल्सो. इसी को हम क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं. इसके 3 सिम्टम्स हैं. फर्स्ट, लो IQ लेवल, स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू एंड हाई एग्रेशन. ठीक है. एक तो IQ लेवल कम होता है, स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू मतलब इनकी बॉडी पर्सनालिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और हाई एग्रेशन वाले होते हैं. ठीक है. इट बिकम्स वेरी हाइपर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय में तुरंत हाइपर हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस दैट क्राइडो चैट. ओके, क्राइडो चैट इज ऑल्सो an important topic. What is the meaning of cryo chat? Cryo chat is also considered as
कैट क्राई सिंड्रोम, इसको हम लोग कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं. जनरली cry do chat is also considered as cat cry syndrome. Why? Because in this the human beings are generally appears as a human beings, not in baby. Mostly जो बच्चे होते हैं generally they create a voice which is resemblance to mewing cry. जैसे कैट का आवाज होता है, वैसे जो बच्चे होते हैं वो mewing cry करके रोते हैं. That is called the cry do chat syndrome. ठीक है. जनरली होता कैसे है? सो पार्शियल डिलीशन मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर 5 होते हैं, जो शॉर्ट आर्म होते हैं उसके, ठीक है. जैसे ये क्रोमोसोम्स है, हो सकता है यहाँ से क्रोमोसोम्स क्या हो गया, वो डिलीट हो गए, ये शॉर्ट आर्म हो गए. सो दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 5. ये क्रोमोसोम नंबर 5 का था. हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिलीशन हो गया शॉर्ट आर्म पे. सो दैट इज कंसिडर्ड एज क्राई डू चैट. तो इस कारण से मोस्टली ये क्रोमोसोम्स नंबर 5 में होते हैं, नॉट इन क्रोमोसोम्स नंबर 6. सो जब भी क्रोमोसोम्स नंबर 5 में शॉर्ट डिलीशन या पार्शियल डिलीशन होगा उनके शॉर्ट आर्म पे, दैट डिजीजेस अपीयर्स एज क्राई डू चैट. मोस्टली जो इनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो मेविंग क्राई करते हैं, जैसे कैट की आवाज होती है म्यू. ठीक है. उसके बाद मल्टीपल मलफॉर्मेशंस होते हैं. मल्टीपल मलफॉर्मेशन का मतलब होता है उनकी बॉडी डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनका बिहेवियरल स्ट्रक्चरल सारा चीज चेंज हो जाता है. एंड मेंटल रिटार्डेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल द डिजीज. मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मतलब बच्चा पूरे रूप से मानसिक स्थिति से उभर नहीं पाता. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. Now, after that, this disease is also called as cat cry syndrome. इसको हम लोग cat cry syndrome के नाम से भी जानते हैं. And last, we have to discuss that chronic leukemia. Chronic and acute. Acute मतलब जो बहुत कम समय के लिए डिजीजेस होती हैं उसे हम एक्यूट कहते हैं. एंड क्रॉनिक मींस दोज डिजीजेस विच रन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय तक चलते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस. ठीक है. अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की. तो जनरली ल्यूकेमिया इज अनदर टाइप ऑफ कैंसर ऑफ अ ब्लड कैंसर. ये किस प्रकार का कैंसर है? ब्लड कैंसर है. ल्यूकेमिया क्रॉनिक होते हैं, काफी लंबे समय तक होते हैं. एंड जनरली इट अपीयर्स इन अ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21. जब क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे उनके आर्म्स में चेंजेस होते हैं, शॉर्ट आर्म्स हो जाते हैं, that disease is considered as chronic leukemia. उस डिजीज को हम लोग chronic leukemia के नाम से जानते हैं. एंड जनरली पार्ट ऑफ अ लॉन्ग आर्म इज मिसिंग. इसमें जो सबसे लॉन्ग आर्म होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, इसके जगह पे शॉर्ट आर्म आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड chronic leukemia. Okay. Chronic leukemia is also considered as blood cancer. Okay. So it is a chronic disease, बहुत लंबे समय तक चलता है, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है. ओके. So this is all about the diseases of different types of chromosomal disorders. In previous video we have completed the genetic disorders like thalassemia, anemia, alkaptonuria, phenylketonuria, albinism. So many diseases we have discussed. Today we have discussed Edward syndrome, Turner syndrome, Nail-Filter syndrome. ओके. और उसके बाद हमने क्रिमिनल सिंड्रोम, फिर हमने क्राई डू चैट सिंड्रोम, और उसके बाद हमने क्रॉनिक ल्यूकेमिया सिंड्रोम. वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो दिस इज एंड फर्स्ट होमवर्क ऑफ यू ऑल. प्लीज राइट ऑल द डिजीजेस ऑफ on the basis of genetic disorders and on the basis of chromosomal disorders. आपको genetic disorder से जितनी भी बीमारियां उनका लिस्ट अलग बनाना है with definition and examples also. and chromosomal disorders की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको भी आपको अलग करके रखना, अलग लिखना है, and by definition also. ठीक है. उनके definition के साथ और examples के साथ. Okay. till then whatever I taught today you all have to revise very carefully, and if you have any doubt regarding my class you can contact me. Thank you students.